will also yesterday also given in civil matters, especially general power in family cases also, people will be residing abroad, so they cannot appear in person, right? And they has to appear anyhow, else क्या होता, नहीं तो appear नहीं हुए तो क्या होता, केस उनके खिलाफ हो जाता। कोर्ट क्या करता है, किसी को भी अदर साइड जो भी जिसके भी खिलाफ आप केस डाल रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं, उनको पहले नोटिस भेजते आप, पहले भी भेजते, फिर कोर्ट भी डायरेक्शन देता नोटिस भेजना रहता केस में। नोटिस भेजे तो उनका काम क्या रहता, उनको अपीयर होना पड़ता इधर डायरेक्टली, या उन्हें अब्रॉड से नहीं आ सकते तो दे विल बी वर्किंग पीपल, राइट? इंजीनियर्स working abroad, so can they come to India in their matrimonial disputes or civil disputes? Some people are working, having business or any establishments outside the country for education also, so they cannot appear directly in the court, so they will appoint representative, their representative, their family members, their friends, they can appoint anyone or the advocate to represent the matter on behalf of them। क्या होता है, स्पेशली सिविल मैटर्स रहता, so that person cannot appear, so he will appoint his friend or his brother, or father is there, he can appoint his son or his wife, so they will appear before the court and they will argue the case or they will defend the case through the advocate also, so that is called GPA, general power of attorney। so general power yesterday कल पढ़े थे अपन, wife will not be authorized to right of sale in the, unless authorized by husband, पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे और क्या था वो? वाइफ शी कैन कॉन्ट्रैक्ट का था वो, वेट फॉर 5 मिनट्स। ऊपर चलिए, ठीक है चलिए। तो नेक्स्ट कहाँ तक आए थे अपन, प्रिंसिपल एजेंट एडवोकेट होगा ना ये। नेक्स्ट क्या है, कुछ पढ़ा रहा था, कहाँ तक आया था, क्या एग्जाम्पल दे रहा था मैं आप लोग अभी? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, राइट। सो जनरल पावर, एनी पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन, फैमिली मेंबर, फ्रेंड और एनी थर्ड पर्सन कैन बी गिवन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या बोला था मैं, क्या हो रहा था इसमें, क्या चेंजेस हुए बोल रहा हूँ, डेली बोल रहा हूँ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का बोलना आज।
बोलिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए, कल बोला एग्जाम्पल इसका. एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन? व्हाट इज जीपीए? एग्जाम्पल दिया था कल मैं जनरल पावर General ऑफ. power of attorney. यस, व्हाट एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू यस्टरडे एंड बिफोर यस्टरडे आल्सो. व्हाट वाज इट बीइंग मिसयूज्ड? उसका मिसयूज हो रहा था. सुप्रीम कोर्ट क्या करा, उसको अमेंडमेंट क्या हुआ, उसका चेंजेस. व्हाट अबाउट ऑल यू ऑल पीपल? भूल गए पूरे? व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ भी याद नहीं रह रहा. हाउ विल यू अपीयर बिफोर द एग्जाम? हाउ विल यू अपीयर? Sir, General power you of attorney, what was happening in general power of attorney used to be given to the people, friends or family members by the person who are residing abroad of some property, that is land or house. So what the people used to do here, they were doing that they were they were having the right to sell the property also earlier. पहले क्या हो रहा था, जीपीए में प्रॉपर्टी बेचने का भी राइट था. अभी क्या हुआ, उसका मिसयूज बहुत हो रहा है. उसको जो है खाली देखभाल करने के लिए रख रहे हैं, उसके खाली रेंट्स मैनेज करने के लिए, उसको प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए रख रहे थे. बाद में क्या बेच रहे कर रहे हैं बोल के सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन दैट clause of sale. Now general power of attorney is restricted only for the maintenance of the property and not for what? Sale, right? बोलिए ना तुम्हें. नेक्स्ट एजेंट प्रिंसिपल एडवोकेट हो गया. What is the difference here? Tell me between the GPA advocate. What is the role of advocate in the GPA? GPA में advocate का role क्या रहता है? Power. You understood what is GPA? Can be appointed given to any person, right? Any person can appear on behalf of him, right? GPA to advocate क्या रहता है इसमें? Right. But the other point is that a person who has to file the case, he need to, before the agreement will be made. What will be that agreement between to appear on behalf of the person? That person who want to hire the advocate, he will say that I am giving you the authority to appear on behalf of me, right? So that is called wakalatnama, right? Generally wakalatnama will be there in the civil matters and memo of appearance in criminal matters to appear, right? अपियर होने के लिए क्रिमिनल मैटर्स में था, सिविल मैटर्स में वकालतनामा. वकालतनामा क्या रहता, मतलब क्या है? द वर्ड इटसेल्फ वकालतनामा इज टेलिंग दैट वकालत, गिविंग यू वकालत. वी हैव आल्सो द वर्ड वकालत, राइट, है अपने पास भी. सो फ्रॉम दैट ओनली द वर्ड हैव बीन टेकन वकालत एंड वकालतनामा. You will sign first the contract, that is also a part of contract. Contract will be signed there. It will be mentioning that I am authorizing so and so advocate to appear on behalf of me before the court of law, right? That will be the permission given to the advocate. Even the family courts, wakalatnama will be filed by the parties. Parties will give wakalatnama to the advocate, that stating that they does not know the law. For that reason, they are engaging the advocate to appear on behalf of them and to argue the case, fight the case, and deal with the case, whatever. So that is the wakalatnama. So that is also power of what? बोलिए क्या है वर्ड ये? जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, राइट? That will be there. Next coming, देखिए यहाँ पर पूरा wide range of matters है. General power of attorney is a legal document by which one person, the principal, authorizes. Principal है ये, principal बोल तो नहीं लिखना, इसको principal बोल रहा. Principal मतलब who is the head? Who is the head here? The party who is giving the authorization. GPA क्या कर रहा है? Authorization दे रहा, authorize कर रहा, right? He is giving authorization. Authorizes another person, agent or attorney. एजेंट मतलब कोई प्राइवेट पर्सन, अटॉर्नी मतलब एडवोकेट, टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ इन द वाइड रेंज ऑफ मैटर्स. वाइड रेंज ऑफ मैटर्स क्या है? वाइड रेंज का मतलब कई सारे मैटर्स है, क्रिमिनल है, सिविल है, रेवेन्यू, मैट्रिमोनियल, ऑल दिस इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ मैटर्स. दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से हियर. नेक्स्ट इज what bill is granted to whom? Plaintiff, defendant, accused in custody, convict. So let's go to the note what it says. An accused is in custody means a person who is kept under the control of law enforcement agency authorities or the court in connection with a criminal offense. क्या बोल रहा है? अक्यूज कौन है बोले तो यहाँ पर बोल दे रहा आपको. अक्यूज किसको बोलते हैं? बोल को पर्सन जो है जिसको अक्यूज कौन रहता है. अक्यूज को पहले क्या करते हैं पुलिस वाले? अरेस्ट करे बाद से क्या करते हैं? क्या करते हैं बोला हमें? कस्टडी, जेल में डालते लेके के, राइट? मींस हु इज केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ enforcement authorities. Who is enforcement authorities? Law enforcement agencies. Police is the on behalf of the state. Police is law enforcement authority here, right? Or the court.
कोर्ट का क्या रहता है, जुडिशियल रिमांड. यहाँ क्या हो रहा है, पुलिस कस्टडी. ये इन कनेक्शन विद कोर्ट, इन कनेक्शन विद द क्रिमिनल ऑफेंस, राइट. जनरली यूजुअली क्या होता, क्रिमिनल में होता है. रेयर इट विल हैपन इन द सिविल मैटर्स, राइट. So first thing you should come into the mind is criminal offense, right? इसमें क्या हो रहा है, प्लेंटिफ हो रहा है. प्लेंटिफ किसमें बोलते हैं, प्लेंटिफ डिफेंडेंट. इट विल बी यूज, दिस टर्मिनोलॉजी विल बी यूज इन द सिविल मैटर्स, राइट. एक प्लेंटिफ रहता है जो केस फाइल कर रहा है, दूसरा जो है डिफेंस रहता है, डिफेंड करता केस. जो भी है, सही कौन है गलत कौन है वो बात की बात है. सो द पर्सन हु फाइलिंग द केस इज नोन एज कॉल्ड प्लेंटिफ, राइट. नेक्स्ट, जो भी जिसके खिलाफ आप केस फाइल करें या आपके खिलाफ कोई फाइल करे तो आप डिफेंडेंट होते हैं, राइट. नेक्स्ट, बेल इज ग्रांटेड. बोल तो बेल किसको होती है यूजुअली, सीधा सिविल क्रिमिनल को इसमें केसेस में होती बेल, राइट. चोरी करो या छोटा ऑफेंस रहो या बड़ा ऑफेंस रहो, बिलो अप टू 7 years दैट इज बेलेबल ऑफेंस, या 7 years के अबव पनिशमेंट रहेंगी तो उसमें जो है कस्टडी होंगी, जेल होंगी. उसमें उसमें क्या करते, फिर बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, बेल पे छूटता. बेल का मतलब क्या होता, दैट इज श्योरिटी ऑन श्योरिटी. श्योरिटी कौन होता बोल के बोला था मैं, हु विल बी द पर्सन श्योरिटी, जमानत देने वाला. श्योरिटी कल बोला ये भी मैं, बोलिए वही बोलिए, क्या है श्योरिटी, कौन देते, कहीं को देते, क्या देते हैं. श्योरिटी विल बी द पर्सन ऑन बिहाफ, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स. बट अब क्या उनके ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं रहते, कोई भी पर्सन, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स कैन कम फॉरवर्ड एंड गिव श्योरिटी ऑन बिहाफ. श्योरिटी मीन्स दे आर गिविंग, प्रॉमिसिंग द कोर्ट और गिविंग एन अंडरटेकिंग बिफोर द कोर्ट दैट we will make him appear before the court. यूजुअली क्या है सिनेरियो, क्या होता है, केस अगर फाइल हुआ तो जेल में रहना बोल के, उसके बाद ट्रायल चलता है, उसके बाद अगर बाइज्जत अगर नहीं करा, कुछ भी साबित हो गया तो ही विल बी एक्विटेड, केस से बाइज्जत बरी हो जाते, राइट. लेकिन अगर वो पर्सन जो है जेल में रहा, क्यों क्या बोल के डालते बिल एप्लीकेशन, क्या बोल के फाइल करते हैं, बोलिए, ये तो भी बोलिए एटलीस्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल what on what condition bill will be granted, what he will say before the court. Are you able to hear me? Online students, at least reply for that. Khalid, Yes, sir, you are audible. so tell me, क्या बोल के करते, कल बोला परसों बोला मैं, बोलिए. Forgot. So they will state that they are the only sole persons, they are head of the family members, they are having age old persons, they need to look after them for their care, medical attention and provide food. They have to earn day to day, they are wage laborers or wage earners or whatsoever they are employed, or they are the managers, something like that. So they have to look after either the family or the employees. So for that reason they have to be there out, and only then they can carry out everything, right. And if they are inside the jail, what will happen, their families will suffer, right, their employees will suffer, isn't it. What happens in Yeah. some cases, MLS, once he was arrested, what will happen, there is any company organization, they have to issue salaries, checks has to be signed. So unless they sign, they come out, that thing what may, so उसमें क्या होता है, that will affect large number of families, public at large. So on that conditions, bail will be given, right. So they will say that we will make him appear whenever the court asks him to appear, when at the time of trial will be conducted, right, as per the procedure in, what is the procedure of trial conducted in criminal law, what is that called, IPC, CRPC, एविडेंस, व्हाट इज इट, वो भी बोल रहा हूँ मैं, बोलिए उसमें से क्या होता, या BNS, BNSS, BSA, प्रोसीजर फॉलोड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर मैं खुद बोल रहा हूँ, CRPC, BNSS, राइट, बेसिक्स, व्हाट हैपेंड. So next, so plaintiff in civil and defendant will be there, and accused in the custody is, that is the answer for grant of bail. Accused is in custody. Note, an accused in custody means a person who is kept under the control of law enforcement authorities or the court in connection with a criminal offense, right. Hope this is clear. Next, the word bail refers to whom. Bail किसको बोलते हैं, temporary release from the custody, contract of bailment, giving guarantee that he will not be arrested again, none of the above. क्या होता है बेल, किसको बोलते हैं, ऑप्शन ABCD. Temporary release. Temporary release. Why will he be temporary release, tell me. Just now few minutes are given all description on this, अभी पढ़ा है, बोलिए.
So temporarily is released and promise that he will appear before, as and when the court calls them, they will appear before the court and they will go through the trial, they will face the trial. And the other condition, सबसे important condition क्या रहती बेल पे छूटने की, ये रहती के to prove his case and to prove his innocence, right? There might be some evidence he will be having, that some agreement will be made and contrary to some other agreement. Example you take of will agreement में रहता है, will agreement में क्या रहता, the parents must have been made, might have made a will in favor of this person, his brother. And second, what happens if their elder brother does not look, or the some other family member does not look well, so they will come to younger son, they will make another will in favor of younger son, right? So which one will be prevailing, second will or first will or second will? Second will prevail. So what, there are chances that first person might go to the police station and file a case that he instigated the parents, डराए धमकाए, and he will file the case court, and he will go to the police will come, they will arrest him, FIR will go against him. Then once if he goes to the released on the bail, then he can get that document and prove his case and prove his innocence, right? Isn't it? हो सकता है ना, ऐसा possibility है ना? So that is another scenario where a person can be person to come out of the bail, temporary release of the custody. Next, what is contract of bailment? Contract of bailment किस सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में आता? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कौन से सब्जेक्ट में आता? Indian contract law. कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट है, माइंड प्रेजेंट एवरीवन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर बोलिए, ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा ईयर है? 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट, same 1872. I'm giving you hint. Even then you are not able to tell the words of written. I'm telling CRPC, then also you are not able to tell criminal procedure code. What is for contract of bailment? That is contract act, right? The next, giving guarantee that he will not be arrested again. ये क्या है गारंटी? ही विल नॉट बी अरेस्टेड अगेन, गारंटी देते हैं इसमें। बेल में बेल देते वक्त नए अरेस्ट करते हैं, अब छोड़ दे रहे बोल के, ही विल बी अरेस्टेड। बेल में भी जो है, बेल देते वक्त भी, परसों बोला मैं, बेल देते वक्त कंडीशन रहती, क्या रहती कंडीशन? दैट इफ ही डज नॉट अपीयर, कोर्ट बुला जब नहीं आए तो क्या होता, वो श्योरिटी को बुला के श्योरिटी को अरेस्ट करते, श्योरिटी के जो पैसे रहते वो जब्त कर लेते, देते वक्त बोलते ये पर्सन को आप श्योरिटी दे रहे ना, इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या बोलता हाउ बोल के बोलते लोग, तो जब सब बेल ग्रांट करते हैं। अगर ये शख्स अगर जो अक्यूज है, कोर्ट को नहीं आए, कहीं बाहर भाग गए, कहीं भी हुआ, तो क्या करते हैं, श्योरिटी को अरेस्ट करते हैं, श्योरिटी के पैसे जब्त करते हैं, जमानत के, बोला था मैं, ये होता है। नेक्स्ट, और एक दूसरा क्या होता है इसमें, टेम्पररी कस्टडी, रिलीज ऑफ द पर्सन कस्टडी। हाँ, फिर यहाँ तो ये होता, फिर से बेल एप्लीकेशन फाइल करना, बाहर आया वहां से, फिर नई श्योरिटी, नई बेल, अरेस्ट कर लेते पुलिस वाले। यहाँ तो पहले क्या होता, वारंट होता, अवेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू बोल के इशू होता, ट्रायल चलते वक्त अगर नहीं आए तो, या वकील साहब को बोल के नहीं आ रहे बोल के पिटिशन फाइल करना, या नहीं बोले नहीं आए सडन, तो क्या होता, बाहर चले गए तो वारंट इशू होता। वारंट को फिर क्या करते, कुछ भी रीजन था, मेडिकल सिक थी, एक्सीडेंट हो गया था, कहीं कोमा में थे, वॉट एवर द रीजन, you can file an application through the court, through your advocate counsel, and you can get that recalled. Recalled का मतलब क्या होता है, जो बेल एनबीडब्ल्यू इशू करे थे वो जो है फिर से वापस स्टेज पे रिकॉल्ड, कॉल करते, एनबीडब्ल्यू कॉल करते, उसको रिकॉल वापस स्टेज पे आया था, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड एंड यू आर अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट, राइट? दैट कम्स अंडर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है वो भी एक, राइट? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, टेम्पररी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। नेक्स्ट उसमें और क्या है, बेल हो गया, रिलीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, अभी ये याद नहीं करें, फिर बोल के मैं फायदा नहीं, अपना फिर भूल जा रहे हैं। गिविंग गारंटी दैट ही विल नॉट बी अरेस्टेड अगेन, दैट इज नॉट पॉसिबल। सी अदर, व्हाट इज द अदर सिनेरियो इन दिस केस? जब केस होता तो जो है बिलो 7 ईयर्स तो नहीं होता, अबव 7 ईयर्स रहे तो हो जाती। पुलिस वाले अगर पकड़, दो कंडीशन रहते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं या FIR हुई वो, तो क्या करते, भाग जाते, कोई भी होता ना, anyone will try to escape even if an FIR is booked on you. What you will do first, you will try to collect the evidence. First, you try to protect yourself from getting your hands into the police. You will approach the court by filing not bail here. Bail will be filed after, once the person is arrested. 217, 220. So anticipatory bail file करते हैं। Did you hear about anticipatory bail? Ever heard? You might have somewhere, sometime, at some point of time, right? Anticipatory bail, you will, where you will say that there is an allegation on me, suppose there is बैंक में fraud कुछ हुआ, तो all the employees or some department is there, तो केस हुआ तो क्या होता, पूरा कंपनी बोला था, कंपनी के पहले केस किसके ऊपर होता, कंपनी के ऊपर होता, सेकेंड
representative of the company that are directed for the person, second person in charge, and all the company includes all the every person, right? उसमें क्या होता है, the person पूरे आए थे, करे नहीं करे सब आए थे, like army rule. What will be there? Army, if one person has done something, punishment will be given to all, right? We have CRPF here, so that will be the thing. So to escape, to evade that thing, they will say that they will approach the court and they will say that we have not done, and these are the whatever the proofs they will have. They will say that we are no way involved or no way in connection with this case. Whatever the offense has been done, and if the court is satisfied with the reason, court will grant them anticipatory bail, right? So there will be no condition that he will not be arrested. The police, they have to appear before the court of law, that they can, however, the police cannot arrest, but they have to produce themselves before the court within 15 days or some period will be there. Within that time, they have to appear before the court and police station and give some surety, file the surety. Either the court will put the surety or the higher court asks the lower court to appear before the lower court and file the surety sufficient whatsoever the lower court says. So lower court will say 20,000, 25,000, 50,000 whatsoever according to the situation. So that surety has to be filed before the made, and they has to be filed along with the bail application and bail order to the police. That will be given to the police, and police will not arrest, but you have to appear before the investigation, interrogation. That has to be compulsory procedure that you have to undergo, right? करे नहीं करे बोले कैसा मालूम होना, आप नहीं करे बोले तो खाली कोर्ट बसा करा तो पूरे बाहर रहते, किसी नहीं होता. So to make out the case and to find whether that offense has had happened or not, whether that person is guilty or not, the procedure will, police will interrogate and submit the report before the charge sheet will be filed. If these find guilty, if the police finds him guilty, they will say that he is accused in this case. If he is not guilty, they will drop the case that this person is not involved in this case, right? Next, none of the above to nahi hota. The word bail refers to a temporary custody release of the person from custody, usually on certain conditions to ensure his appearance before the court. Thus, bail means temporary release or custody pending trial or investigation, during the pendency or investigation. अब मैं एंटिसिपेटरी बिल का बोला तो फिर भूल जाना नहीं, फिर बोलना मैं नहीं पढ़ा तो फिर नेक्स्ट, राइट? आप लोग हम बोलना नेक्स्ट वर्ड बोलिए. अब एंटिसिपेटरी बिल क्या रहती? व्हाट इज एंटिसिपेटरी बिल in your own words, own language? Anyone from online or offline? ये क्या है? What is this? अभी बोला ना मैं, बिल, एंटिसिपेटरी बिल. समझ में आया नहीं आया? पहले नहीं आया किसको भी? नहीं आया? बाहर रहता बोले नहीं करा बोल के बोला, इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोल तो हाँ, कोई भी कोर्ट को गए तो कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बिल रहता बिफोर यू आर अरेस्टेड. बेल, बेसिक डिफरेंस इज बेल ऑफ दैट जनरली पुलिस अरेस्ट करती, केस एफआईआर होने के बाद पुलिस अरेस्ट करती, उसमें क्या होता, अरेस्ट होने के बाद बेल लेते हैं. एंटिसिपेटरी बेल में क्या होता, एफआईआर बुक होने के बाद आप क्या करते हैं, अरेस्ट होने से पहले जाके बेल लेते हैं आप, नहीं है बोल के. सिंपल है. समझ में क्यों नहीं आ रहा? Why? Because I am telling in English. That is why you are not able to understand. Sir, वही है क्या है? 218. हाँ, 218. Yeah. The word bar in court refers to what? Bar का मतलब क्या होता है जनरली? What is bar? What do you understand by bar? One word, many meanings I told you. So here bar, what first comes to your mind? Bar means? You would not tell. However, I'll tell you. Bar usually refers to the advocates. When it comes to advocate fraternity, there'll be a room for the advocates, right? You have in every department you'll have room. So judges, advocates, staff of courts, or none of these. So there will be a room in the advocates for sitting or for the leisure period, for keeping their bags, coats, everything will be there. So for what will they will have their lunch, right? There should be some courthouse will be there. So person, the advocate should be going to court, and what they, when they want to have lunch and what they will do till that their names are called, parties are called. So till that time, where should they sit? Can they sit in one courthouse? Courthouse will be of this size or somewhat big or small. तो पूरे जितने भी केस hundreds of suppose there are 100 cases in the court, तो पूरे 100 advocates आके कोर्ट हॉल में बैठ सकते क्या? नहीं बैठ सकते. तो there will be bar association, separate bar association will be there, so advocates can, when they come, they will sit there, they will take up. या एडवोकेट्स पूरा कोट गाउन पहन के पूरा रोड पे गाड़ी पे जा सकते वैसा? चलो कोट पहन के मान लिए, पैंट पहन सकते क्या? नहीं पहन सकते. गाउन नहीं पहन सकते. So they will go to the court, they will carry their files will be there, so they need to
make Xerox copies karana, they need to ready the file, make documents, right? For that, all that purpose, there will be bar association. So the word bar in quote refers to bar council bhi rehti, bar association hai, bar council hai. What is bar council? Just now I told you that when you become the advocate, you need to pass through an exam called AIB, and what all the records you will take the oath, and all your records will be kept with every state will have its one bar council, right? In the High Court, here you have bar council in the Telangana High Court, right? Gate number 6, there is bar council. Through that, you will procedure will be filed, and your every 5 years you will be enrolled. You will need to क्या बोलते हैं आपके documents आप कितने cases file करे, you need to submit there, right? And then you will get certificate every 5 years, that will be renewed. Now earlier that was not there, now that has been there. So every 5 years you need to say that you have filed so and so wakalat, number of wakalats you are appearing, you are a practicing advocate. So the difference, why, what is the difference? Because they are a company also, advocates, I told you, like insurance company or some other industries, advocates will be there. So for that reason, you are practicing advocates, you need to submit before that court. That will be the bar council and bar association. That is the difference. The word bar in court refers to the legal profession of the body of lawyers who are qualified to practice law. It is originally means the physical railing in a court that separates lawyers and judges from the public. Right? Thus, bar generally denotes advocates, lawyers collectively, or the legal profession. Next, the word bench refers in a court to advocates, benches provided for the witness, judges, court staff. Bench किसको बोलते हैं? This bench advocates, he gets some call or message, he will say, I am on the bench. So does that mean that he's standing on the bench? No, then he is on the, before the bench will be like that, will be sitting on the chair, and table, a big table will be there, and before him there will be clerks. They are called bench on the, that is called bench, and bench clerk will be there. They will be assisting the judge in giving the dates. They will scrutinize the file, they will give to the judge. Suppose advocate is filing the wakalat or whatsoever petition, both the parties, so he will take that, he will write something, and he will just pass on to the judge. Judge will see, he will give dates, he will tell the dates to the parties to appear so and so date, right? So that will be the work of the bench clerk. To call the, in the morning call work will be done. जितने भी केसेस है, जितना बेल हो गई, बेल होने के बाद एवरी मंथ पेशी रहती है, whatever the monthly dates will be given, month or 2 months. So morning he will be calling all the accused names, all, and the magistrate will be giving the dates, right? For some trials are there, so magistrate will call for trial. First they will send the persons who need not appear, trial is not there, they will call, they will go. Then trial, who are doctors and scientific officers, medical officers, police, and all the witnesses will come. Their trial will be conducted by the magistrate, right? That is bench and bench clerk, right? That you got the point. The word bench refers to the court judge panel of judges who are presiding over a case. It also originally means that the seat or place where the judges sits in the courtroom. Thus, bench generally denotes to the judicial authority, judges or judge of the court. यहाँ judge और judges क्यों बोल रहा? Judge या judges plural, single and plural. Why is it saying? In constitutional courts you will have sometimes double there, 3 judges, 5 judges, 7 judges, right? Depending on the matter. Especially in CJ, chief judge court, he will be assisted. Chief judge will be every day. वहाँ क्या होता है, थोड़े दिन को benches change, judges will be changing. For criminal matters, one judge will be dealing with criminal matters. After few days, few months, he will be changed to civil, right? Civil will be changing to this judicial, this criminal. So likewise, and the CJ chief justice will have been changing one judge at least. There will be one another judge along with the chief justice, right, to assist him, or for the training, whatsoever the matter will be, that they will be transferred from one court to another. Then they will be, senior most judges will be, after the CJ is retired, another chief justice has to be put on this place, right? So for that purpose, another judges will be assisting the chief judge. और टू नॉट इन, जरूरी नहीं है कि चीफ जज रहना, बोल के चीफ जज के अलावा भी कोई कोर्ट्स में डबल बेंच रखते हैं, 2 जजेस रहते हैं, दे विल बी डीलिंग द मैटर both in Supreme Courts and High Courts. 2 persons born to a common ancestor but 2 different wives are called half blood, full blood, natural heirs, adopted children. ये क्या है आपको, आप क्या समझते हैं? adopted children का मतलब क्या है, बोलिए? Who are adopted children? Adopt बच्चे, adopted. That's natural heirs, full blood, सगे भाई बहन, full blood, and half blood means one father, 2 wives having children from second wife, right? Sontele bhai. Note, 2 persons born to a common ancestor but 2 different wives. Common ancestor matlab father,
two different wives. एक माँ के एक बच्चे, दूसरी माँ के दूसरे बच्चे हैं, right? Called half blood relations. In law, such persons are said to be related by half blood as they descend from the same ancestor but through different wives. Right? समझ गया ना ये? कुछ भी ज्यादा बोलने का नहीं है इसमें. Next. Online students, are you able to understand? Are you able to hear me? Students from Yes, online. sir. Yes, sir. Give some response. When two persons are born from common ancestor but by different husbands, they are called referred as uterine blood, half blood, full blood, natural head. सेम पढ़े उसमें क्या था आपने को? इसमें यूट्राइन ब्लड आया, इसमें क्या आ रहा? नेचुरल हेड. एडॉप्टेड चिल्ड्रन आया. डिफरेंस वही है खाली, एडॉप्टेड चिल्ड्रन का आया और यहाँ पर क्या आ रहा? यूट्राइन ब्लड बोल के आ रहा. तो what do you understand by the two persons born from same common ancestor? वहाँ क्या थे? common ancestor father थे but by different mothers थे. यहाँ क्या आ रहा? but by different husbands आ रहा. they are referred as uterine blood. Why? Because the husbands are different, mother is same, so children born out of the same mother, they are called uterine blood. Why? Suppose first husband dies and then she marries second, right? So that children will be there. So that children are called when they are given to the custody of the second husband. That are they are called when they are called actually means the first wife, when her husband dies, she marries to another person. Children born to the second husband also there and first husband also children are there. So to differentiate between the where it happens usually देखिए कब होता है ये बोलता हूँ. Dispute होता है, property रहती है, property का disputes को. However, both wives will go. First wife will also come, right? अगर will it नहीं बना their sudden demise or sudden death के बाद ये second wife हुआ था, second husband आए थे, तो property रहती, property में dispute होता, right? बच्चों को दोनों बच्चे claim करते हैं. तो property dispute के लिए that has been classified as uterine blood. That is children born out of the first husband and children born out of the second husband, right? So that will be generally used over there in the cases when two persons are born from a common ancestral mother but by different husbands, they are referred to as uterine blood relations. In law, uterine blood means refers to a person descended from the same mother but different fathers. आ गया ना समझ में ये भी? Next what I want. 2:21. So I'm concluding here. We'll continue the class tomorrow. Try to come early so that class all already was right. Try to come on time. And you all. By behind moral also side. Yesterday I was not good. Moral today but and the more test we can given to you as tomorrow also and Sunday. So you don't want to stop your practice. Okay, assalamualaikum everyone. Let's begin the class. I know you are listening since then, but I'm not giving you a small break also because of the time. Okay, let's start. Um, yeah. See, in India, if they are asking you the state which gets the sunlight at the first, it will be Arunachal because it's the easternmost part of our country. That's why. But in the globe, in entire world, if they're asking you worldly or globally, which is this country which will receive the sunlight first? Options are China, Norway, Japan, and Rome. The correct answer will be Japan. Okay, let's see. Yes. Now, see, come to the main point why they call it as the land of rising sun. Again, over here, see, these title is given to two areas. If you go with India, Arunachal. If you go globally, it will be Japan.
Now, the country known as the land of the rising sun is Ma'am, Japan. can you please share the screen? Jawahar, you need to share the screen. Now, is it okay? Can you view the screen over here now? Yeah, Yes, the first ma'am. question for today is the land of rising sun, which is none other than Japan. Let's see the briefing about it. The country known as the land of the rising sun is Japan. Key point: the name comes from Japan's location. Why do we say this? That it is the land of rising sun is because के इनका location कहाँ पर है? एशिया के continent में ये कहाँ पर located है? The easternmost part of our Asian continent, Japan is located. That is the reason उनको हमें rising sun बोलना चाहिए, land of rising sun, because east में ही सूरज पहले उगता है. ठीक है ना? Sun rises in the east, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. So obviously the eastern countries will get the sun raises, I must say, first. Okay, so Japan is the first country which receives. Next, coming to the main point, इसका meaning क्या है? Let's see. In Japanese it is called Nihon or Nippon, and that is nothing but origin of sun. ठीक है? Getting my point here? Now in Japan they call it as Nihon. Why? They call it as Nihon. In their language it is Nihon or Nippon. Why? Because they tell that meaning of that word, the term is that it is origin of sun over here. In their language it is. Now coming to the next question, marble. Marble is igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock, crystalline rock. Basically, we have already studied in our lower classes about these different rocks. Types of rocks are in, science or social, I think so. I suppose in your lower classes you may have heard about it. But let's discuss what is igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock, crystalline rock. It is not necessary that you will get only marble exactly question in your examination. May or may not be. So you should know waterfalls. Sedimentary rocks are the rocks, basically, which what is sedimentation? First of all, sedimentation, कोई भी चीजें, चाहे वो पानी में हो, कोई भी चीजें अर्थ के लेवल पर हो, जो सेटल डाउन हो जाती, ठीक है? अगर आप पानी में मट्टी डालो, पत्थर डालो, कुछ भी डालो, आइटम डालो, जो सिंक होकर नीचे सेटल डाउन हो जाता, द सेडिमेंट, द सेटल डाउन. तो ये सारी चीजें क्या है? नीचे जाकर सेट हो जाने वाली है. ओके, अब इन तरह की कुछ चीजें होती हैं जो सालों सालों एक ही पोजीशन में रह रहकर उनके ऊपर 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 पदर 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 मट्टी की बोलो या पत्थरों की बोलो, जम जम कर क्या होता, रॉक क्रिएट हो जाता. उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स विच इज सेटल्ड ओवर अ पर्टिकुलर लेयर. किसी भी लेयर पे, चाहे वो पानी की सतह हो, ओके, जमीन की सतह हो, किसी भी सतह पर, ये जाकर जब जम जाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, एंड इसके बाद एक सॉलिड से कुछ चीजें उसके अंदर डिकम्पोज बोलो या जो भी बोलो, उसके बनने के बाद वो मोटे मोटे रॉक्स बन जाते हैं. इन ब्रीफ करके मैं आप इसको बता देती हूँ कि इग्नियस रॉक कौन से होते हैं. थोड़ा सुन लिए तो आपको एग्जाम में भी काम आने वाला है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि मार्बल ही पूछा जाए. हो सकता है इग्नियस रॉक का नाम देके बोले कि विच इज द रॉक, तो आपको पता होना चाहिए इग्नियस क्या. इग्नियस क्या है? देखिए, ये फॉर्म होता है मॉल्टन मटेरियल. मॉल्टन मटेरियल क्या है मैम? जो अंदर से, जमीन के अंदर से लावा फटे या कोई ऐसा वाकया हो जाए जिसमें से अंदर से कोई चीज निकलती है. ओके, मैग्मा भी बोलते हैं उसको अदर वर्ड्स में. ये मैग्मा का जम जम के जो मैग्मा बाहर निकल के पहाड़ पे पूरा पिघल के बहता है. पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट वो जम जाता, सॉलिडिफिकेशन हो जाता. सॉलिडिफाई होने के बाद भी कई साल तक उसके ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर की पदर जमे रहती. उसके बाद उसके कई साल के सूख जाने के बाद उसमें चेंजेस आते हैं. दैट पर्टिकुलर स्टोन, और यू कैन से वो सॉलिड पीस, वो इग्नियस रॉक कहलाता है. आई बात समझ में? जो चीजें जमीन से बाहर निकली लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद वो ठंडी हो गई, कूलिंग डाउन हो गई उसका. पहले तो वो गर्म था, लावा था, मैग्मा था, बट उसका कूल डाउन हो जाने के बाद कई सालों तक उसके माउंटेन पर वो जमा हो जाना, वो एक्चुअली उसका ओरिजिनल रॉक नहीं होता है. इंटीरियर लावा होता है जो बाहर निकलता है, मॉल्टन होता है वो बाहर निकलता है. उसके बाद सूख जाने के बाद कई सालों के बाद वो एक पर्टिकुलर रॉक में तब्दील हो जाता है. दैट इज इग्नियस रॉक. जैसे कि आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए बुक में, ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट.
अगर ये दो नाम आए तो आप इग्नियस टिक करना, ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट। क्यों मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैम? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते बेटा जो एक्यूमुलेशन होता है चीजों का किसी सदर पर, किसी सतह पर, चाहे वो पत्ते हो, कुछ भी चीज हो, पत्थर हो, पेबल हो, रॉक हो, मट्टी हो, धूल हो, वट एवर इट इज, वो सेटल डाउन होती है। सेडिमेंट होना मतलब नीचे आकर सेटल हो जाना, चाहे पानी की सतह हो या जमीन की हो। इट कैन बी सैंड, इट कैन बी मड, इट कैन बी एनी पार्टिकल्स ओवर टाइम। इससे क्या बनता मैम? फॉसिल बनता। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राउन कोल कैसा बनेगा? सेमी डिकम्पोज प्लांट से बनेगा। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो जमीन के अंदर सेटल डाउन हो के सेडिमेंट्री रॉक्स बने हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, ओके, लाइमस्टोन। ठीक है, ये वाले रॉक्स आपके फॉसिल भी कहलाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स है, नो डाउट। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स है। नाउ कमिंग टू मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्या है मैम? देखिए ये दोनों का कॉम्बो है, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक। ये दोनों भी चीजें क्या है बेटा? कोई चीज निकल रही है, नीचे उतर रही है किसी भी जगह पे, चाहे वो पहाड़ी इलाके पे हो या जमीनी इलाके, पानी की सतह, जो भी है, ये दोनों का मिश्रण बनकर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। एग्जाम्पल मैम, मार्बल, ठीक है, स्लेट, दोनों लिख लीजिए। मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन। क्या है मैम? क्रिस्टलाइन देखिए ये होती है मिनरल्स की कूलिंग। जमीन के अंदर जितने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं वो, एक्चुअली तो जमीन के अंदर बहुत गर्मी होती है, बहुत हॉट एरिया होता है, ठीक है। जब अंदर होते हैं तो जरा लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं। अब आपको अंदर जाके तो नहीं पता चलेगा ना क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं बेसिकली। बट जब ये थोड़ा बहुत कूलिंग पीरियड में आते हैं, जब ये कूल डाउन हो जाते तो अंदर ही अंदर इन मिनरल्स में चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। ये मिनरल्स थोड़े ब्राइट एंड क्रिस्टल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैम, कोयले के खान में हीरा बनता है। कोयला तो काला होता ना मैम, बट क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस से वो हटकर अब चेंजेस लाने लगता है, क्योंकि उस रॉक में केमिकल चेंज हो जाता है। दिखने के लिए वो कोयला ही है, कोयले के अंदर ही ये बन रहा है। कोयला जो मिनरल है वो धीरे धीरे कई सालों के बाद उस पर्टिकुलर एरिया पर जहां पर ये डायमंड बना, वो एरिया में केमिकल चेंज हो जाता है, जिससे वो एक फॉसिल से जाकर क्या बन जा रहा है? क्रिस्टलाइन रॉक बन जा रहा है। उसके अंदर बहुत ज्यादा चमक होती है, उसमें बहुत ज्यादा ग्लिटर एंड शाइन होता है। एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए आप, एक इग्नियस रॉक के जैसा ही ये कुछ कुछ रहता है। इसमें भी एग्जाम्पल ग्रेनाइट और मार्बल दे रहे हैं, ठीक है। बट मार्बल स्पेशली उसको हम क्रिस्टलाइन रॉक पे इसलिए मार्क नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अंडरस्टूड? लेट्स गो अप। ओ ओ ओ, या, let's read it. Marble is a metamorphic rock. Why? Because marble forms when limestone, which is the sedimentary rock, undergoes heat and pressure inside the earth. ये जो heat and pressure के थ्रू इसका केमिकल चेंज होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। मैंने क्या कहा? दोनों का मिश्रण है मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, दोनों का मिश्रण है। हा? रहेगा ये बाहर वाली कोई चीज या जमीन के अंदर की सतह की कोई चीज और ये मेल्ट होकर बाहर आई है या फिर जमी है कहीं, दोनों भी आलम में ये जैसे जैसे रहते रहते इसके अंदर एक केमिकल चेंज प्रेशर से आता है या हीट से आता है, इसके बाद ये तब्दील हो जाता है बिल्कुल भी मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, चलिए नेक्स्ट मैम। द ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल एंड सरफेस वेव्स इन एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स फ्रॉम। पहले हम ये सेंटेंस को पूरा समझते। मैम ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्जिट्यूडनल क्या है, सरफेस क्या है, ये समझेंगे, ठीक है, तभी तो हमें क्वेश्चन समझ में आएगा, तो आंसर करेंगे ना। चलिए, बेसिकली देखो बच्चों, ट्रांसवर्स जो होता है मूवमेंट है, लॉन्जिट्यूडनल भी क्या है? मूवमेंट है, इनके टर्म्स है। तो ये कह रहे हैं ना कि जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स है। आपको मालूम है जमीन एक पूरी अखंड जमीन नहीं है, इसके अंदर प्लेट्स है, प्लेट्स बिछी हुई है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, और पूरा अगर सेंटर पॉइंट जानेंगे तो सेंटर पॉइंट क्या? कोर है। वी कैन इवन कॉल इट फोकस, ठीक है ना। फोकस किसको बोलते हैं भाई? जिसके ऊपर अपन नजर बिठाए बैठते हैं, जिसकी अपन, अब अपने आंख का पॉइंटर समझ लो, एरिया जहां पर हमारी नजर का सेंटर पॉइंट है, वो होता है फोकस। हमारे अर्थ के विद इन भी, अंदर भी कोर एरिया रहता है, कोर एरिया, दैट इज नन अदर देन फोकस। अब ये एरिया में क्या है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी रहती है, ठीक है। उन गर्मी की वजह से वहां पर जो एरिया में रॉक्स है, जो भी मटेरियल है, उसको जब प्रेशर बढ़ता है, अगर हीट बढ़ती है, प्रेशर बढ़ती है, ऑब्वियसली, अगर फॉर एग्जाम्पल ही देख लो, अगर मैं आपको कुछ चुरके वाली चीज लगा दूं
ऑब्वियसली आप शेक करेंगे. Why? Because you have a stimuli. Response to stimuli है आपकी बॉडी में. क्यों? कि आप नर्वस सिस्टम आपको अलर्ट करेगा. There is something which is hurting you. चुटका लगा रही है, आपको हीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल शेक. तो जिस तरीके से ये कोर में हीट बढ़ जाती है, तो वहां के एरिया के प्लेट्स बोलो, रॉक्स बोलो, वट एवर इज देयर, वो शेक होना शुरू होते, उनको वाइब्रेशन मोड में आना हो जाता, बिकॉज ऑब्वियसली स्टिमुलाई है वो. ओके, तो अर्थ के विद इन हो रहा है ये एक्शन. ओके, ये रिएक्शन फोकस लेवल से स्टार्ट होगा. तो यही पूछा जा रहा है कि ओरिजिनेट कहां से होता है ये शेकिंग. शेकिंग तो कोर से ही शुरू होती है. बट मैम ये ट्रांसफर्स क्या है, लॉन्जिट्यूडनल क्या है, जरा समझा दो. ट्रांसफर्स क्या होता है? जैसे कि ट्रांसफर्स को समझने के लिए पानी का बहाव पढ़ते हैं, समझते हैं. जब पानी बहता है तो मैम ऐसा ऐसा वेव्स आते हैं, स्टेशनरी वेव्स, ऐसा ऐसा यूं यूं जा रहा है, साइड बाय साइड. तो ट्रांसफर्स मतलब मूवमेंट साइड बाय साइड. समझे क्या है? अगर आप कोर में यहां पर हीट बढ़ गई तो पत्थर ऐसा मूव होना शुरू होगा. ट्रांसफर्स. मैम लॉन्जिट्यूडनल क्या है? लॉन्जिट्यूडनल क्या है? साउंड वेव्स कैसा बताते? यूं यूं यूं. आप पढ़े ना साइंस में, जब भी साउंड बताते, एक पुंगा बताते, उसके अंदर ऐसा कर्व 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 लाइंस बनाते. तो लॉन्जिट्यूडनल वैसे हो. एंड वी कैन सिंपली से पैरेलल. पैरेलली मूव होंगे, ये वाले साइड टू साइड मूव होने वाले. तो इसमें ऐसे जो भी तरह के मूवमेंट्स होने दो, चाहे वो ट्रांसफर होने दो, चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल होने दो, या सरफेस. अब मैम सरफेस क्या है? सरफेस मतलब एक पूरी प्लेट का सतह से ही उधर हट जाना. यानी कि भाई अब देखो, अब आपको कोई चीज सडन इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो खाली हाथ नहीं हिलता, आप पूरा जंप लेते लेते ना. फॉर एग्जाम्पल मैं गलती से कुछ करंट का काम कर दी और जिसमें मुझे मोर ओवर शॉक के जैसा लग गया, तो मैं खाली अपना हाथ नहीं हिलाऊंगी, मैं मेरी पूरी बॉडी हिला दूंगी अपनी एक जगह से दूसरे. तो सरफेस मूवमेंट जो है ना वो जरा लार्जर है. ओके, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक विल बी मोर ओवर. ओके, बट ये सारे वेव्स कहां से ओरिजिनेट होंगे ये आपको समझना है. फोकस से ही होंगे. फोकस क्या है मैम? सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ, दैट इज कोर. चाहे वो कोर बोलो या फिर आपको फोकस बोलो, दोनों आपको टिक करने. अगर फोकस आ गया तो फोकस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, लेट्स सी द ऑप्शंस हियर. देखिए यहाँ पर क्या, अब आप समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा गया है. द ट्रांसफर्स हो, कॉमा दिया गया, लॉन्जिट्यूडनल या सरफेस वेव, ये तीनों अलग अलग तरह के वेव्स है. ओके, एक नहीं है. बट क्या ये तीनों का जो ओरिजिन है अर्थक्वेक के मैटर में कहां से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, चाहे पत्थर ऐसा मूव करके प्लेट उधर हट जाए, उससे क्या होगा? रिफ्ट क्रिएट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जो पढ़े थे अपन, यूं 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 हिल जा रहा, जमीन हट जा रही. लॉन्जिट्यूडनल है तो ऐसा ऐसा बिल्कुल एक शिफ्ट में हट रही. ओके, और अगर सरफेस की बात आ रही तो टोटली पूरी प्लेट ही एक साथ हटने के चांसेस है. उसमें मैग्नीट्यूड हैवी रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है. सो दिस इज द क्वेश्चन हुए. ओके, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? लेट्स गो विद ऑप्शन. द एपिसेंटर विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ. एपिसेंटर क्या है मैम? आई विल एक्सप्लेन. द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही नहीं है यहाँ पर. ठीक है, द फोकस विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ. यस, वाई मैम? क्योंकि फोकस ही हमारा कोर एरिया माना जाएगा. कोर एरिया में ही तो हीट डेवलप होती है. हीट ज्यादा होगी तो स्टिमुलाई भी उसी एरिया से स्टार्ट होगा. और जैसे ये टाइप के वेव्स क्रिएट होंगे, चाहे वो ट्रांसफर्स हो, लॉन्जिट्यूडनल हो या सरफेस वेव्स हो, आपका मूवमेंट यहीं से होगा, फोकस से. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स जस्ट रीड इट फॉर योर ओन सेल्फ कि होता क्या है. द ट्रांसफर्स, लॉन्जिट्यूडनल, सरफेस वेव्स इन द अर्थक्वेक ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द फोकस. Hypocenter, that is nothing but core. Here's a breakdown. Focus, hypocenter, the point inside the earth where the rock first. Why is this disturbance going on? The point inside the earth where the rocks first break and the earthquake begins. This sudden release of energy generates seismic waves. आपको परसों पढ़ाया था सेस्मोग्राफ. यही हमारा अर्थक्वेक जनरेट, मतलब अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए यूज होता है. तो सिमिलरली सेस्मिक वेव भी उसी को ही बोलते हैं. ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल, ऑल कम्स अंडर सेस्मिक वेव्स. ये वेव्स क्या टाइप के रहते हैं ना? अलग अलग टाइप के. देखिए, प्राइमरी वेव्स तो लॉन्जिट्यूडनल वेव दैट कंप्रेस एंड एक्सपैंड मटेरियल. सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स को बोलते हैं, जो ऐसा ऐसा मूवमेंट रहता. ओके, वेव के डायरेक्शन में, जैसा कि साइड बाय साइड. सरफेस वेव ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस कॉजिंग मोस्ट ऑफ द डैमेज. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सरफेस वेव बहुत ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट होता है, जिससे ज्यादा तरह की डैमेजेस हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन हो सकता है. सबसे ज्यादा सीवियर वेव भी माना जाता है अर्थक्वेक कॉज करने वाला. चलिए, एपिसेंटर क्या, ये अपन जरा समझेंगे. द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस. ये फोकस पे नहीं रहता है, डायरेक्टली अबव द फोकस रहता है. ये फोकस कोर है, इसके ऊपर रहता है. तो ये वाला क्या है? आप while we feel the strongest shaking here, the wave originate from the focus.
ये याद रख लीजिए, किसी भी तरह का वेव हो, चाहे ट्रांसफर लॉन्जिट्यूडिनल और सरफेस, फोकस से ही जनरेट होना शुरू होगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सीजनल कॉन्ट्रास्ट, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मैक्सिमम इन, देखो अब ये समझने की कोशिश करो, आपको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ऑलरेडी आपके लोअर क्लासेस के टीचर्स पढ़ा चुके, खाली मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि जब हम ये ग्लोब के बारे में पढ़े थे, हमें एक सर्कल बताया गया था, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, कैप्रिकॉन, कैंसर, इक्वेटर, ऐसा हमारे लैटिट्यूड बताए गए थे। अब मिड लैटिट्यूड क्या होते बच्चों, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ऑब्वियसली ये दो ही है ना, आप इक्वेटर के ऊपर देखो तो कैंसर, नीचे देखो तो कैप्रिकॉन, यस दीज आर द मिडिल लैटिट्यूड। अब इसमें पूछ रहे हैं कि सीजनल कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम होते किधर है। देखो, द लाइट ऑफ द सन इफ डायरेक्टली कम्स टू द इक्वेटर, तो मेजर हीट वेव्स कहां पर आ रहे हैं हमारे, दोनों मिड लैटिट्यूड्स पे तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। कमिंग टू द हीट गोइंग टू द पोलर रीजन, थोड़ा लो रहेगा। तो बेसिकली जो चेंज इन इवेपोरेशन हो, या फिर हमारा बोलते कंडेंसेशन हो, इस तरह के एक्टिविटीज होने वाले हैं, वाटर साइकिल बोलो, वो मेजरली कहां पर अकर होंगे, मोस्टली मिडिल एरिया में, क्योंकि सन इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन दैट, राइट। और पोलर रीजन में थोड़ा लो रहेगा, ठीक है। तो मेजर कॉन्ट्रास्ट सीजनल कहां देखने मिलेंगे हमें, मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेट्स रीड इट अबाउट seasonal contrasts are maximum in the region far from the sea in the interior of the continent because the land heats up and cools down much faster। अब यहाँ पर थोड़ा इंटीरियर ज्योग्राफी के बारे में बता रहे, सन की रोशनी पड़ेगी बट एरिया विच आर फार फ्रॉम द लैंड, ओके। देखो आप समझो, रीजन फार फ्रॉम द सी, जो दूर है वो हीट भी जल्दी होता है और कूल भी जल्दी हो जाएगा। Here this area will have heats up very faster and even cools down very faster than the ocean। क्यों पूछो मैम, पानी जो दिन भर गर्म होगा धूप की छुआओं से, तो रात में उसको जल्दी ठंडा हो सकता हो, नहीं हो सकता। तो एरिया में जहां पर नजदीक है ओशन या कोस्टल एरिया बोलो, इसमें क्या रहेगी, गर्मी का ही थोड़ा बहुत ह्यूमिड एरिया रह सकता है। वो क्यों, क्योंकि हवा में थोड़ा पानी भी गर्म ही है, जल्दी कूल नहीं हो सकता पानी, क्योंकि सुबह से जो गर्म हो रहा पानी, क्या वो जल्दी ठंडा हो सकता, नहीं। बट जो दूर है वो जमीन जितनी जल्दी गर्म भी होती है उतनी जल्दी कूल भी हो जाती है, बट मेरा जो समंदर के पास है उसको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली। तो उस चेंज की वजह से ये मौसम में तब्दीलियां आते हैं, ठीक है। यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर सर्दी है, तो ये हवाओं में जो गर्मी और सर्दी का गेम होता है, देखो कभी भी याद रखो आप, गर्म हवा है तो ऊपर जाएगी, अब नॉर्मल है भाई, आप नॉर्मल आप जाइए, पैन रखिए, हीट द वाटर, वाटर वेपर गोज अप, इट्स नेचुरल साइंस, ठीक है। तो ये चीजें समझो, अब जहां गर्मी है वहां की हवा ऊपर जाएगी, तो समुद्री एरिया में जो गर्माहट रहती है वो गर्म जो शुआएं बनती रहती शाम तक की, रात तक भी, उसका टाइम लगेगा, ठंडा होना टाइम लगेगा। तो वो चीजें पहाड़ी के इलाके से गर्म हवाएं उठेंगी और जमीन के इलाकों पे जाएंगी, तो ये जो विंड क्रिएट हो रहा है, यही हमारा कॉन्ट्रास्ट ऑफ वेदर होता है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट इसको कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पढ़ लीजिए, ओशन मॉडरेट टेम्परेचर, तो कोस्टल एरियाज आर स्मॉलर सीजनल डिफरेंस, वाइल इनलैंड एरिया जहां पर अंदर की तरफ का जो लैंड है एक्सपीरियंस वेरी हॉट समर्स बट वेरी कोल्ड विंटर्स ऑल्सो, क्योंकि वहां पर, हाँ बिकॉज वहां पर जल्दी गर्म भी हो रहा जमीन तो जल्दी ठंडी भी हो रही, वाइस वर्सा। सो दैट इज द मिड लैटिट्यूड्स आर द आंसर ओवर देयर। फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स इन रिवर बेड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये चारों वर्ड्स में आपको भी एक्सप्लेन कर, देखो पहली बात तो वाटर पैथोल्स, पॉटहोल्स, पॉटहोल्स होते क्या है, जब कोई नदी का पानी बहते जाता है वो कुछ मट्टी पत्थर सारा कुछ मटेरियल ले लेके आता, इजंट इट, खाली तो नहीं आता, उसका ड्रैग हो रहा है, पानी ड्रॉप हो रहा है, तो इट विल ब्रिंग सम मटेरियल्स अलोंग विद इट। तो वो सारा जो सैंड पार्टिकल्स बोलो, मड पार्टिकल्स, स्टोन, व्हाटएवर रॉकी थिंग्स, दे ब्रिंग इट डाउन। पर वो जब पानी में जाके मर्ज हो जाते हैं, व्हेन दे गो इनटू द व्हिचएवर ओशन, दे फॉल इनटू इट, तो वो लोग की स्पीड जो गिरने की रहेंगी, उसका जो मूवमेंट थोड़ी देर तक रहेगा, ऑब्वियसली इट विल बी ऑनगोइंग मूवमेंट, रुकता थोड़ी है। रिवर इज ऑलवेज ongoing rivers, very few rivers in the peninsula will be little bit like सूख जाते हैं due to the they are rain fed, so many of the Himalayan rivers they are always going, they are called perennial, why, because हमेशा बहती रहती है, सदा बहने वाली नदियों को पेरिनियल कहा जाता है। वो वाली रिवर जब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है तो अपना माल जो भी लेके जाती है वो साथ में, वो जाकर वहां पर एक कोरेजन क्रिएट करता, कोरेजन क्या है मैम, कंटिन्यूअसली रैपिडली रबिंग इट, रबिंग समथिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरेशन समझाने के लिए बेहतरीन आइडिया क्या है, एक टपका यूज करेंगे, टपका, ओके। टपका जब जमीन पे गिरते रहता किसी एक ही स्पॉट पे पर्टिकुलरली कॉन्स्टेंटली गिरते जा रहा, गिरते जा रहा, तो व्हाट हैपेंस डाउन देयर ऑन द फ्लोर, इट क्रिएट्स अ पैथोल, पॉटहोल क्रिएट होता है। आप नोट करेंगे ना कि कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह पर अगर कंटिन्यूस, खाली खतरे की बात करें मैं टपके की, तो रॉक को
रब करके, रैपिडली रब करके वो जगह गड़ा बन जाता। तो सोचो नदी जिस प्रेशर से आ रही, उस प्रेशर का अंदाजा लगाइए आप। अगर वो जब गिरेंगी तो अंदर सी रिवर के रिवर बेड पे जब ये सारा माल जब लेके जाती है तो वो कितना एब्रेशन कोरेजन क्रिएट करेगी। वो कोरेजन क्रिएट होता है, उसी से अपने बोलते से ये कैथोड बनते ना। मैम कोरोजन क्या है, इरोजन क्या है, ये भी थोड़ा बताइए। कोरोजन क्या है? कोरोजन होता है मेटल्स का, रिवर के बेड का नहीं होता। ये वर्ड्स इसलिए समझा रही हूँ, रिलेटेड टू दीज वर्ड भी आंसर्स क्वेश्चन आ सकते हैं। कोरेजन क्या होता है कि कोई लोहा है, लोहे के ऊपर अगर वो नेचुरल थिंग्स के साथ, जैसे बायोटिक वाले मटेरियल से जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जैसे कि मॉइस्चर है, वाटर है, कोई भी तरह की चीज से लोहा अगर अट्रैक्ट हो जाता है तो उसके अंदर रस्टिंग शुरू हो जाती है, आयरन ऑक्साइड क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर। अब वो मेटल को धीरे 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 खाने लगता है, लाइक इट्स गोइंग टू कम ऑन टू एन एंड नाउ, दैट आयरन विल लूज इट्स कैपेसिटी, उसकी जो एबिलिटी है वो खत्म होना शुरू होती है, रस्टिंग हो जाती है, एंड दैट इज द रीजन आयरन ऑक्साइड क्रिएट हुआ था। ये रिएक्शन का जो होता, उस रिएक्शन को बोलते कोरोजन। अगर कोई रिलेटेड टू कोरोजन आ गया क्वेश्चन तो आपको मालूम होना चाहिए, मैम ने को एक्सप्लेन करे थे कोरोजन क्या है। मेटल्स का किसी केमिकल रिएक्शन से या फिर किसी नेचुरल चीज से, जैसा पानी है, किसी भी चीज से इंटरेक्शन होने के बाद अगर उसमें कुछ रस्टिंग हो जाए, आयरन ऑक्साइड आ जाए, उस मेटल का काम हो गया, तो दैट इज कोरोजन, और वो किसी वैल्यू का नहीं रह जाता। ओके, दैट इज कोरोजन। इरोजन क्या मैम? जगह, सतह, आपकी जमीन की सतह से कोई चीज, जैसे कि आपका सॉइल है, ओके, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, बट क्या हुआ, बारिश आई, विंड आया, हवा लेके चले गई, ऊपरी पदर पूरी उड़ गई, और उस जमीन के अंदर की जो मेन वैल्यूएबल मट्टी थी वो उड़ के कहीं और चली, क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब हो गई, ओके, डिसलोकेट हो गई। इस तरह का मूवमेंट जो पत्थर, सॉरी, सॉइल का होता है, वो इरोजन कहलाता है। Erosion is totally related to soil, soil and water also. We can explain it that also. Next is hydration, मैम। हाइड्रेशन क्या होता है? यहाँ पर देखिए, हाइड्रेशन में मसला क्या है। अब आप ये बोलेंगे मैम बॉडी, पानी पीते हैं हम, बॉडी का हाइड्रेशन की बात हो रही है। नो, नॉट अबाउट दैट हाइड्रेशन हो रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड सो दैट यू डोंट गेट एनी कंफ्यूजन। बेटा देखो, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको मालूम होना चाहिए केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता? किसी चीज का हट जाना। ओके, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस स्पेशली मिनरल्स में होता है। ओके, सम मिनरल्स absorb द वाटर, कुछ मिनरल्स, कुछ रॉक्स पानी को absorb भी कर लेते हैं, सी दैट। और उनका कुछ केमिकल रिएक्शन पानी के साथ, जब लोग आप लोग साइंस में पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, मियोसिस, ये पढ़े होंगे ना आप लोग। जब दाल भिगाते दाल फूल जाती, क्यों मैम? ऑस्मोसिस होता, तो उसके अंदर अब्जॉर्प्शन हो रहा, तो वो तो ग्रेन की बात हो रही है। यहाँ पर पत्थर भी अब्जॉर्ब कर सकते पानी। ओके, कुछ मिनरल्स, कुछ मिनरल पत्थर अब्जॉर्ब करते, और उसके बाद वो रॉक के अंदर क्रैक आ जाता, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड हाइड्रेशंस। तो ऐसा भी ब्रेकडाउन ऑफ रॉक होता है। स्पेशली मैं आपके लिए रिसर्च करी हाइड्रेशन क्या होता है, क्योंकि अदर देन दैट अगर बॉडी की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो हाइड्रेशन इज व्हाट वी ड्रिंक वाटर, वी नीड वाटर फॉर अवर बॉडी हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नहीं होना है, इसलिए पानी पीजिए। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा, हमारा पानी हमारे बॉडी को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर पीने से नुकसान नहीं है, फायदा है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। द फॉर्मेशन ऑफ पैथोल इन रिवर बेल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इरोजन caused by abrasion. We even call it as corrosion. यहाँ पे एक ही स्पेलिंग का जरा मिस्टेक हो गया, corrosion is the correct answer, A is the correct answer, okay. थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर बेटा, प्लीज मेक अ नोट। थोड़ा एक आगे पीछे लेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक करके नोट करना। Okay, now how it happened? Small stones, sands, and pebbles carried by the river swirls into the depressions of the river bed and continuously वो grind करता है। As I told you, मैंने टपके का एग्जांपल दी, बार बार टपका एक जगह पे गिरते जाएगा तो ऑब्वियसली गड़ा होता जाएगा, and that is nothing but swirling action grinds the rock surface gradually, drilling circular holes, and that is called as you know, abrasion. Abrasion भी बोल सकते हैं, corrosion भी बोला जा सकता है, both are synonyms, okay. वो फ्रिक्शन क्रिएट होने से होता है। कंट्रीज फेवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्लीज। देखो ये सारे कंट्रीज वेस्टर्लीज के असर में आते हैं। वेस्टर्लीज आपको मैं ऑलरेडी पढ़ाई हूँ, वो हवाएं जो वेस्ट एरिया से इनॉग्रेट होती है, एंड इट गोज टू द अदर साइड, साउथ चील, साउथ वेस्ट अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टर्न यूरोप, ईस्ट ऑफ यूएसए, ऑल दीज आर वेस्टर्लीज। ऐसे भी दिखने में ही वो वेस्टर्न एरियाज है, तो वेस्टर्लीज आर द winds which will affect them. Countries favorably influenced by westerlies are those located in the mid latitudes between 30 and 60 degree latitude. ये अभी मैं आपको क्या बोली, ग्लोब पे जो लैटिट्यूड्स है, कैंसर एंड कैप्रिकॉन के विद इन जो एरियाज फॉलो रही, उसमें वेस्टर्लीज के एरिया वो आएंगे। बोथ हेमिस्फीयर where prevailing westerly winds blow from west to east, westerlies bring rain bearing winds which support agriculture, forestry and moderate climates. रेन बेरिंग मीन्स मतलब उस हवाओं से हमारे उस एरिया में, वेस्टर्न एरियाज में ग्लोब के बारिशें होती है, इससे उनका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री बहुत ज्यादा पैमाने पे होती है।
नोट करना चाह रहे हैं तो आप प्लीज ये नेम नोट कर लीजिए। यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, न्यूजीलैंड आर दीज दोज कंट्रीज, सॉरी, जो हमारे वेस्टर्ली से इफेक्ट होती। ठीक है, वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर। जॉग फॉल्स, मैम देखिए जॉग फॉल्स क्या है? जॉग फॉल्स वही प्लंग फॉल है। प्लंग में इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, बिल्कुल भी प्रणाली के जैसा जो बहता है उसको हम प्लंग बोलते हैं। जॉग फॉल्स भी एक प्लंग का एक एग्जाम्पल है। किस रिवर में है मैम? तप्ती, भीमा, कावेरी, शरावती। तो शरावती इज द करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा पढ़ ही लेते हैं इसके लोकेशन के बारे में। कर्नाटका में है बेटा शिमोगा। अगर ऐसा भी पूछे कि किस लोकेशन में है, डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आ जाए तो ये शिमोगा याद रखना पड़ेगा, शिवमोग्गा। ओके, Jock Falls is a plung waterfall situated on the Sharavati River in Karnataka. And river का नाम याद रख लीजिए, शरावती रिवर, एंड लोकेशन शिमोगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो शिवमोगा, कर्नाटका। चलिए मैम बिरहूर क्या है? हमें कुछ भी नहीं मालूम। बिरहूर का तो हमको आइडिया भी नहीं है क्या है बिरहूर। आप ही बोलो अब बिरहूर क्या है। बिकॉज क्वेश्चन तो आने वाला है, अगर अगर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए बिरहूर क्या है। देखो बेटा, बिरहूर एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है, ओके, जो उनके लाइफस्टाइल जैसा मैंने बताया ना आपको कि पहले जैसा लोग एंशिएंट लोग रहते थे, सोनेज टाइप के लोग बोलो, या फिर फॉरेस्ट में रहने की उनको आदत है। बेस्ट एग्जांपल एक मोगली। बचपन में मम्मी बहुत लगाते थे ना, मोगली देखो बेटा, मोगली देखो, एंजॉय स्टोरी। तो मोगली जैसे टाइप की लाइफस्टाइल, जो जंगल में रहना है और वहीं के एरिया में वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं नेचर के साथ, ये लोग की लाइफस्टाइल रहती। तो बिरहोर्स आर दोज पीपल दोज आर मेजर ट्राइब कम्युनिटी। ओके, ट्राइबल कम्युनिटी पीपल है जो इंडिया में भी मौजूद है। तो कहां पर है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बिरहोर्स आर द ट्राइबल पीपल। वेयर डू दे लिव इन द फॉलोइंग स्टेट? इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट? लेट्स से नागालैंड, आसाम, तमिलनाडु, बिहार। बिहार इज द करेक्ट आंसर। बिरहोर को बिहार से आप रिटेलिएट करके लिख देना। ठीक है, बिरहोर बिहार, लाइक दैट, सेम सेम दिख रहा है कैसा। द बिरहोर्स आर अ ट्राइबल कम्युनिटी primarily found in Jharkhand and the part of Bihar, India. That's it. बिरहूर का पूछे तो आप इमीडिएटली बिहार पे टिक कर दीजिए, सिंपल है, निमोनिक देने की ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि बिरहूर बोले तो ट्राइबल कम्युनिटी है जो हमारे बिहार में लोकेटेड है, आज भी है, वो मौजूद है। ठीक है, आज भी अवेलेबल है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव विंटर रेनफॉल? विंटर रेनफॉल, अब ये मैम क्या है? विंटर में कैसा रेनफॉल मैम? कुछ जगहों पर विंटर रेनफॉल होता है इंडिया में। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू द कॉज। कॉज बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों होते हैं वो नीचे हमारे पास है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। केरला में होगा, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, पंजाब में। पंजाब में इसके बारे में बताया जा रहा है। अब पंजाब का लोकेशन तो नॉर्थ है मैम, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न बोलना चाहिए, यस। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ में कैसा होता, लेट्स सी। ठीक है, द रीजन्स दैट रिसीव विंटर रेनफॉल caused by western disturbance are the northwestern parts of India, mainly in the Himalayan region and the plains of पंजाब। अब इसका कॉज देख लो बेटा, कैसे है? लो प्रेशर सिस्टम्स है मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी से ईस्टवर्ड लो प्रेशर मारता। तो मेडिटेरियन सी जो हमारे गल्फ को टच होती, वो मेडिटेरियन सी से जो लो प्रेशर आता, वो जाकर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ऊपर की तरफ हिट करता, जिनकी वजह से देखो, लो प्रेशर हिट करने की वजह से वहां पर रहती सर्दियों का मौसम, बट वहां उसके लो प्रेशर का पहुंच जाने से बारिश भी होती। तो दैट इज कंबाइंड सीजन। ओके, अब आप समझ रहे हैं क्यों मेडिटेरियन सी का जो लो प्रेशर, हवाओं का लो प्रेशर। देखो यहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है बताऊं मैं आपको कि कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, ओके, एंड बहुत सारे टर्म्स है जो मैं इंशाल्लाह समझाती हूँ इसमें क्या होता, वेपर का क्या रोल होता, वाटर वेपर का रोल बहुत ज्यादा होता, कंडेंसिफिकेशन का क्या रोल होता है जिसकी वजह से रेनफॉल होता। ओके, मैं बताऊंगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आ गए तो ये सारी चीजों को नोट करना बहुत जरूरी। तो जो लो प्रेशर मेडिटेरियन सी से आ रहा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। देखो जितना गर्म हवा रहेगी ऊपर की तरफ जाएगी, और ये गर्म हवा को कौन लेके जाएगा? हवा ही लेके जाएगी। हवा की दोष, स्पीड ऑफ द विंड, दिस मूव फ्रॉम मेडिटेरियन टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, बट दैट इज इंडियन नॉर्थ वेस्टर्न साइड फॉर अस। हमारे लिए क्या होगा? वो पंजाब का लोकेशन होगा, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड होगा, बट मेडिटेरियन से वो ऊपर की तरफ मूव होगा इन द कर्व शेप लाइक दिस, और वो मूवमेंट ऑफ द विंड causes rainfall in the winter time of that particular area, that is Punjab. Bring winter rain, snow crucially for rabi crops like wheat. ठीक है, अब वो जमाने में क्योंकि सर्दियां चलते रहते, रैबी क्रॉप्स चलते रहते, बट उस टाइम पे उन लोगों को ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं, बट फिर भी वो कॉन्सिक्वेंस उनको फेस करना है। ठीक है, हमें खारिफ क्रॉप्स के लिए पानी चाहिए, बट अब राबी के टाइम पे भी अब उनको फेस करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते, क्रूशल है, कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज द एवरेज लीटर ऑफ सी वाटर सॉल्ट कंटेंट? देखो पानी में जितना भी पानी है, समंदर में, सी में कितना भी पानी रह दो, 1 लीटर में कितना नमक है, ऐसा पूछा जा रहा है। एवरेज 1 लीटर में
समंदर के पानी में खारापन, कितना सॉल्ट कंटेंट मौजूद है 1 लीटर में, तो 35 ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 35 grams is the correct answer. How, ma'am? Let's see. The average salt content of sea water is about 35 grams per liter. You can even say 3.5% by weight. This is called salinity. मतलब एक पानी में कितनी नमक घुल सकता है। We have even studied about saturation, right? अपने लोअर क्लासेस में पानी जब जितना ज्यादा नमक या शक्कर को घोल सकता है उतना ही उसको सैचुरेट बोलते हैं ना, सैचुरेटेड। अगर उससे ज्यादा मिलोगे तो शक्कर शक्कर की जगह रहेगी, नमक नमक की जगह रहेगा। तो कितना घुल सकता है 1 लीटर में नमक? 35 ग्राम्स घुल सकता है। 1 लीटर की बात हो रही है यहाँ पर, एक एवरेज लीटर। उसके बाद वो क्या होता, वो रहना शुरू हो जाता, वो सॉलिडिफाइड रहता, मतलब उसके अंदर घुलता नहीं। तो सीप के लेवल में इतना ही गुंजाइश है, उसको बोलते हैं सैलिनिटी। इट मींस दैट 1 liter of sea water there are roughly 35 grams of dissolved salt, mainly sodium chloride along with little bit of मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। थोड़ा बहुत मेजर सोडियम क्लोराइड रहेगा 35 ग्राम्स में, मेजर सोडियम क्लोराइड रहेगा, बाकी के थोड़े जो है वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में रहेंगे। यानी कि टोटल पूरा 35 ग्राम्स पूरा खाली सोडियम क्लोराइड नहीं है, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, अंडरस्टूड? ये वाले भी तत्व मिले हुए हैं उसमें, ठीक है या, बट ओवरऑल टोटल 35 ग्राम्स रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन? देखो बेटा, पर्सिपिटेशन क्या होता है ये समझेंगे। रेनफॉल, स्नोफॉल, फॉग, हेल। रेनफॉल आपको मालूम है कैसा होता है, वाटर साइकिल आप पढ़ चुके हैं। ओके, हमारे समंदर से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेटेड हीट ऊपर जाती है, कंडेंसिफाई होती है, कंडेंसेशन होकर क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड को पर्सिपिटेशन होता है, उसके बाद ही वो ड्रॉपलेट में बदल के नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली नॉट में नहीं आएगा, पार्ट ऑफ आएगा रेनफॉल, पर्सिपिटेशन से होता है। कमिंग टू स्नोफॉल भी सेम लाइक दैट, कमिंग टू हेल सेम लाइक दैट, क्योंकि वो भी ऊपर से ड्रॉप हो रहा है। फॉग एक ऐसा पार्ट, ऐसा एक वो है, फिनोमेना है नेचुरल, जो पर्सिपिटेशन से नहीं हो सकता। ओके, ये किसी प्रेशर से होता है। ओके, पर्सिपिटेशन से नहीं होता है। लेट्स सी, तो फॉग इज द करेक्ट आंसर हो गया। How come, ma'am? Rainfall, snowfall, and hail are all forms of precipitation, meaning water in liquid or solid form that falls from clouds to ground. चाहे वो बर्फ गिरो, हेल क्या है बेटा? बर्फ के ओले गिरना, ओले गिरना ना, ओले गिरना क्या है? कोई भी सॉलिड है, ओले गिरना हेल, पानी बरसना रेनफॉल, बर्फ का स्नो एक अलग पैटर्न ऑफ सॉलिड है, स्नोफॉल होना, ये सारा पर्सिपिटेशन के रीजन से ही हो रहा है, ऊपर से नीचे गिरना। बट एक फॉग है जो बिल्कुल भी अदर हैंड, बिल्कुल भी अलग चीज है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर नियर द ग्राउंड, इट डज नॉट फॉल एज पर्सिपिटेशन। ठीक है, जब सुबह सुबह हिंदी में उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, जरा सुबह सुबह का जो देखो, शबनम टाइप, हाँ, शबनम रहती एक हवा में, एक फॉगी, मतलब एक ऐसा दिखता है कि क्लाउडी हवा चल रही, वो वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स रहते जो पर्सिपिटेशन से नहीं गिरते। इट्स अनदर सोर्स। ठीक है, तो एक ही वर्ड है जो आउट ऑफ द बॉक्सेस। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ लैंडस्लाइड अकर ड्यू टू कंबाइन एक्शन। देखिए, वेदरिंग, किसी चीज का हट जाना, वेदरिंग अवे, कोई चीज चले जाना। हैवी रेनफॉल, ऑब्वियसली बारिश का जोर से गिरना किसी चीज पर। हैवी रेनफॉल, ऊपर से बारिश ज्यादा तेजी से गिर रही, ज्यादा मात्रा में गिर रही। वेदरिंग, हैवी रेनफॉल, ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड रेनफॉल, वेदरिंग एंड विंड। चलिए, इन चारों ऑप्शन में आपको क्या लगता है, क्या करेक्ट आंसर देगा मैम? ओ थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए जल्दी, क्या हो सकता है मैम? चलिए, वेदरिंग, चीज का हट जाना, मानती होता है। लैंडस्लाइड में नीचे गिरी है ना कोई चीज, मूव तो हो रही, तो वेदरिंग मान लेते होगी। मैम, हैवी रेनफॉल कॉज हो सकता है, ऊपर से बारिश गिरी और वो जो पहाड़ से जो कुछ चोटी, मतलब जो कुछ भी पत्थर वत्थर है वो हैवी रेनफॉल से गिर सकते हैं। एज आई सेड, टपके से चेंज आ रहा तो उससे क्यों नहीं आएगा, आ सकता। मैम फिर क्या हो सकता? विंड हो सकता, या वेदरिंग हो सकती, वेदरिंग हो रही, हैवी रेनफॉल हो रहा, बचा क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी जरूरी है, बिकॉज देखो अब ग्रेविटी खाली विद इन द अर्थ की बात नहीं है, ग्रेविटी आउटर सरफेस स्पेस के लेवल पे भी ग्रेविटी वर्क करती है। अब उसका अलग, हाँ आप समझिए, ये गर्दिश करना भी अर्थ का ग्रेविटी का रोल है उसके अंदर, हाई लेवल फिजिक्स है ये। ओके, हमको खाली इतना बता दिए थे कि न्यूटन ने देखा कि एप्पल गिरा और एप्पल गिरा तो ग्रेविटी को प्रूव कर दिया उसने। ओके, बट अगर हम अंतरिक्ष में भी जाकर देखेंगे तो आपको वहां भी ग्रेविटी देखने को मिलेगी, स्टडी मटेरियल में, हाई लेवल फिजिक्स है वो। कमिंग टू दिस पॉइंट, यहाँ पर ग्रेविटी का भी रोल है, क्योंकि कोई चीज अगर ऊपर किसी चीज की वजह की, देखो कोई चीज, ये दीवार ने कुछ छोड़ दिया तो ग्रेविटी उसको पुल करेगी इमीडिएटली, ग्रेविटी की वजह से वो ऊपर नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएगा। तो ग्रेविटी का भी रोल।
तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा रहेगा बच्चों? B1, दैट्स इट। वेदरिंग, किसी चीज का हट जाना, हेवी रेनफॉल भी एक कॉज हो सकता है ना। ग्रेविटी विल आल्सो प्ले अ रोल फॉर द लैंडस्लाइड्स। मैम लैंडस्लाइड्स है क्या? पहले तो ऊंचे ऊंचे जो देखो, अब मैं कैसा बताऊं इसको, पहाड़ी है कुछ, ओके, बट उसके साइड के दीवारों पे से उसका रॉक का मूव हो जाना। अगर वो सैंड ड्यून है तो सैंड का मूव हो जाना, अगर वेरी डेलिकेट रॉक्स है तो वो रॉक का मूव हो जाना, ओके, दैट इज नथिंग बट लैंडस्लाइड। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं because of this only. Because it can be heavy rainfall, it can be weathering issue, it can be earthquake, it can be gravity as well. Okay. Sorry for this. Yeah. So this is it. Weathering and winds भी एक cause हो सकते बच्चों, but major amount of correct option is that. चलिए, landslides occur due to the combined action of gravity, water, human, natural triggers. Reason तो बहुत सारे हैं। हमारा जो ऑप्शन है उसमें मेजर क्या है रोल? वेदरिंग, मूवमेंट, हैवी रेनफॉल, जिससे बहुत ज्यादा कॉज हो सकता है, ग्रेविटी इज ऑल्सो वन ऑफ इट। देखिए, लूजन सॉइल क्या होगा बच्चों? ग्रेविटी से खींचे चले जाएगी, डाउन द हिल इट विल फ्लो डाउन, मट्टी पूरी, ठीक है। हैवी रेनफॉल, मेल्टिंग स्नो, ये सारा कुछ क्या होता? ये सॉइल कोहेजन होता, मट्टी का मूवमेंट एक तरफ से दूसरी तरफ। उसके बाद स्लोप अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि ग्रेविटी है, तो ऊपर कोई चीज अगर अपनी जड़ से छूट जाए वो नीचे ही गिरेगी ना नेचुरली। अर्थक्वेक भी एक रीजन हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन एक्सकवेशन, स्टीप स्लोप भी बनाने में लोग उसको चेंज करने जाते हैं और उसकी वजह से भी बहुत कुछ लैंडस्लाइड हो जाता है। हमारा तो बहुत बड़ा रोल है दुनिया में। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लैनेटरी विंड? देखिए, प्लैनेटरी विंड, प्लैनेट पे ये विंड है, हमारे अर्थ की प्लैनेट की विंड क्या होगी बेटा? सी ब्रीज, टॉर्नेडो, मॉनसून, वेस्टर्ली। बेसिकली सी ब्रीज क्या होती? वो हवा जो नदी के किनारे रहती। टॉर्नेडोज तो खतरनाक रहते। टॉर्नेडोज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैम, जरा बोलो आप। बिल्कुल भी हमारे ऐसा ऐसा ये वर्ल्ड के जैसा जो क्रिएट होगा, ये हवाएं चलती रहती और ये इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस लेके आती हैं, इस तरह की जो चलेगी, ये होता है टॉर्नेडो। ये कई बार पानी पे भी आ जाता है, कभी बाहर भी आता है, ये वर्ल्ड विंड टाइप, वर्लपूल टाइप ऐसा क्रिएट हो जाता है। तो आई वांट टू से दैट कि ये वाला ऐसी हवाएं टॉर्नेडो वाली होती है। ओके, अब ये वाली तो हमारी हर हमेशा नहीं रहेंगी, कभी कभार ओकर होती है, रेयरली। ओके, डिसास्ट्रस है ये, रेयरली होती है। मॉनसून, ओके, ये भी है मैम, बट हर जगह पूरे अर्थ पर एक समान नहीं है। वेस्टर्ली आर द सीजनल वन। Which one of the following is the type of planetary wind? A type of planetary wind refers to the wind that blows consistently over large parts of the earth due to the global pressure belt and rotation of the earth. And that is, there are so many planetary winds. अगर आपको एग्जाम में ये पूछ दिया जाए तो ये भी मार्क कर सकते हैं आप। ट्रेड विंड्स कहाँ से निकलती है? सब ट्रॉपिकल हाई टुवर्ड्स द इक्वेटर, ऊपर से नीचे आती है वेस्टर्ली फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टुवर्ड्स द पोलर लोज। पोलर ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज जो होंगी वो पोलर हाइट से आके पोलर सब पोलर लोज पर उड़ेंगी। ओके, नाउ दोस आर बेसिक्स यू कैन गो थ्रू इन योर पीडीएफ। Although only the southern part of India lies in the tropical region, the whole of India has tropical climate. Why? This is because जबकि खाली आधा इंडिया ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है, पर पूरा जो मौसम है वो ट्रॉपिकल क्यों है फिर भारत में? समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझिए। आधा हिस्सा ट्रॉपिक रीजन में है, पर फिर पूरे मौसम का जो जो हमारे कंट्री पे मौसम का असर है वो ट्रॉपिकल क्यों है? लेट्स सी। इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून्स। सोचिए, करेक्ट है? दिल बोरा ये सही होगा? यस, क्योंकि देखो मॉनसून की वजह से हमारा पूरा कंट्री के पास एक ही समान का वेदर होगा, या ऐसा बोलना चाहिए कि इन्फ्लुएंस रहेगा। फिर भी पढ़ लेते ऑप्शंस। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन रीजन। होगा, लार्ज ट्रैक्ट्स है रीजन, प्लेन रीजन, बट क्या इसकी वजह से है? नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, ये तो हमें मालूम ही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा, बट क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से क्या ऐसा हो रहा? ऐसा नहीं, तो उसके नीचे वाले एरिया में रहना चाहिए, ऊपर वाले एरिया में तो ये बिल्कुल कोई रीजन ही नहीं है। ओके, खाली ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन मैम।
high Himalayan mountain region separated from the rest of Asia. ये तो कोई बात ही नहीं हुई. तो first one is the correct answer. Yes, India comes under the influence of monsoons. That is the reason it will be as same as lower tropical area, and the northern area of India also will be having the same weather. मतलब उसी से मुतासिर होगा. Let's see. The northern part of India has large tracts of plain region, mainly because of the alluvial deposits brought by the rivers flowing from Himalayas, and these rivers actually basically plays a major role for a longer period. Okay, यहाँ देखो आप क्या करें, rivers like Ganga, Yamuna, Brahmaputra and the tributary deposit sediments over a long period, creating fertile alluvial plains. और यहाँ पर इस प्लेन्स पर, ये कहाँ पर आता है एक्सटेंड, देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, ये एरिया में ये मानसून की वजह से इतना ज्यादा एक तो प्लेन्स भी है रीजन, बट हमारा मेजर रोल मानसून प्ले करता है इसमें, क्योंकि ताकि ऊपर का वेजिटेशन पूरा हमारे मानसून विंड से प्रभावित होता है. ठीक है, लेट्स गो डाउन. You want to get it done tomorrow? Okay, fine. 2:13 will be our target for tomorrow. Okay, na? I know it's 9:15. You got late today. Actually, the class started late, right? Today? Okay, fine. So for today, we are going to discuss till 2:12 children, and from tomorrow, I'll start from 2:13. Okay, and we'll try to see that tomorrow we have to end up. So don't make that. Tomorrow, the geography have to come to an end. Okay, I think so. This is more than enough for you all to understand how to get set for your geography paper. Like it will be very limited question, but we have taught you more than 500, I think so till now. I mean, with the help of your mock exams, we will give you 120 tomorrow and 120 day after tomorrow. So you make sure that you are ready to write those two mock tests. You will be at least approximately around 200 and some change questions you will be answering. Okay, so that will also give you a confident boost if you are doing it well. So you'll get 120 tomorrow and 120 day after. You have to even do the mock test. Okay, hope for the best. Chalo. Take care. You will be getting the link. You have to just click on that and start your mock test. That is digital. You can do it easily from your premises. After you go home also, whenever you're having time in the day, tomorrow after we upload, you can do any time. Before even coming to the class also, you can do it. Okay. Have a nice day. Take care. Any doubts, children, over there? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So tomorrow we'll continue from 2:13 and we'll end up the next PDF. And by this, geography will be over. And coming up Monday, we'll start with Indian polity, because that is very auspicious subject. We have to complete that first. Then we'll see to the history part. As per our discussions with Sohail sir, he is suggesting to go with Indian polity first. Okay. So from Monday onwards, we'll start the Indian polity class, inshallah. Okay. All the best for mock test, everybody over there. Tomorrow we'll generate and give it to you. All right. Tomorrow and day after, both the mock tests, you have to do it from your premises digitally. Take care. Take care. Have a nice day. Take care. Okay, ma'am.